નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ નંબર 5 સવાલ બાન બન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. જે બાળકો દ્વારા સવાલ પૂછવામાં આવે છે, જ્યારે તેનો ઉત્તર ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ આપે છે. બંને વચ્ચેના સંવાદો રજૂ થયા છે. प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है. यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे. वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે, એની સામે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જે બાળકોની અંદર કેટલાક ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો છે તે પ્રશ્ન પૂછે છે અને અબ્દુલ કલામ તેનો સારી રીતે ઉત્તર આપે છે. તો જો અબ્દુલ કલામ છે એ મિસાઇલ મેન તરીકે પણ ઓળખાય છે, સારા વૈજ્ઞાનિક પણ છે અને સાથે સાથે આપણે રાષ્ટ્રપતિ પણ હતા. પ્રશ્નકર્તા એટલે પ્રશ્ન પૂછનાર આર અરવિંદ, કક્ષા 3, સેન્ટ મેડલ સ્કૂલ, ચેન્નઈ. સેન્ટ મેડલ સ્કૂલ ચેન્નઈમાંથી એક વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન પૂછે છે, જેનું નામ છે સ્કૂલનું નામ છે આર અરવિંદ, કક્ષા 3. आर अरविंद અને તેની કક્ષા છે 3 એટલે ત્રીજા ધોરણમાં ભણે છે. क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम उत्तर आपे छे, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि જ્યારે હું 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે મને શિક્ષક હતા મારા એક શિવ સુબ્રમણ્યમ અય્યર. તેની વાત મને યાદ છે. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. कि वर्ग में समझाता था कि कोई पण पक्षी कई रीते उड़े छे. उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. રામેશ્વર સૌથી મોટું પરસાર જ્યારે મેદાન છે, તમિલનાડુ અંદર આવેલું છે. ત્યાં જઈ અને શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને જીવંત ઉદાહરણ લાઈવ ઉદાહરણ આપ્યું. જેનાથી શું થયું, વિદ્યાર્થીને આપણે સાંભળેલું કે પક્ષી 2 પાંખોથી ઉડે છે, પણ જ્યારે પ્રત્યક્ષ હોય છે ને ત્યારે ક્યારેક એનો અનુભવ સુંદર હોય છે. અને વિજ્ઞાન હંમેશા તમે જુઓ એ પ્રાયોગિક હોય છે, પ્રયોગ દ્વારા કરેલું હંમેશા ક્યારેય ભૂલી શકાતું નથી અને વિદ્યાર્થીના માનસ પર હંમેશા તેની છાપ ઊભી રહેતી હોય છે. એટલે જો અહીંયા શું કહે છે कि समुद्र तट पर इसका जीवंत उदाहरण हमें दिया. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई અને તે ઘટના મારા મગજની અંદર હંમેશાને માટે સ્થાન પામી ગઈ છે. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली અને તેનાથી તેને આગળ વિજ્ઞાન ઉપર ભણવાનું અને વિજ્ઞાનમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા મળેલી છે. તો એ જ્યારે 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા અબ્દુલ કલામ, ત્યારે તેના શિક્ષક હતા શિવ સુબ્રમણ્યમ અય્યર. તેની પાસેથી તેને વિજ્ઞાન ભણવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રશ્નકર્તા સરયુ મકર, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? कि बाळपणમાં આપણે કઈ ભાષાને વધારે મહત્વ આપવું જોઈએ? डॉक्टर कलाम मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है. कि मैं પોતે જ માધ્યમિક શિક્ષણ છે એ મારી માતૃભાષામાં જ પૂર્ણ કરેલી છે. માતૃભાષા એટલે કે જે તે રાજ્ય હોય તેની દરેકની જે સ્થાનિક ભાષા હોય માતૃભાષા કહેવાય છે. જેમ કે ગુજરાતમાં ગુજરાતી હોય, પછી મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી, એ રીતે. कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई. અને કોલેજ એટલે કે 12મા ધોરણ પછીના 3 વર્ષ સ્નાતક કહેવાય અને એના પછીના અનુસ્નાતક એટલે 2 વર્ષ मास्टर એના હોય तो संस्था में हुई. मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. કારણ કે માતૃભાષા દ્વારા શીખેલું જ્ઞાન હંમેશા આપણે વિચાર શક્તિ પણ વધારે છે અને સરળતાથી સમજાઈ જતું હોય છે. क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है. આપણે વિચાર હંમેશા આપણી માતૃભાષામાં જ આવે છે. उसी में अपनी बात सहजता से कहने के सक्षम होते हैं. અને આપણી માતૃભાષામાં કોઈ પણ વાતને આપણે સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી શકતા હોઈએ છીએ. पर इसमें कोई भी दो राय नहीं. પણ આમાં કોઈ ફરિયાદ કે કોઈ प्रश्न નથી कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसे संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है. નિતાંત એટલે ખૂબ જ જરૂરી આવશ્યકતા છે. વૈશ્વિક સ્તરે વિશ્વ અન્ય દેશ સાથે સંપર્કમાં આપણે અંગ્રેજી ભાષા હોવી જરૂરી છે. प्रश्नकर्ता છે अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई थी. यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? कि આપણે પણ જો અબ્દુલ કલામ જેવું બનવું શું કરી શકાય, આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. डॉक्टर कलाम उत्तर આપે છે, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए. જ્યારે આપણે યુવા અવસ્થામાં આવી જઈએ ને
ત્યારે આપણે શું બનવું છે તેનું લક્ષ્ય નક્કી કરી લેવું જોઈએ. હંમેશા કુછ બડા સોચો, हमेशा કંઈક ऊंचू विचारो. जैसे ये अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो. कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो. जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाई से होगा. आपके अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा. समस्या को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे. पहले यह जरूर है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो. ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ બહુ સરસ ઉત્તર આપે છે કે તમે તમારું લક્ષ્ય જે ધ્યેય છે તે યુવા અવસ્થામાં જ નક્કી કરી લો અને તમને અંતે તમારે અનુભૂતિ થઈ જવી જોઈએ કે મારે શું બનવું છે અને તે દિશા પર આગળ વધો અને સખત સતત પરિશ્રમ કરતા રહો. જીતોડ એટલે એકદમ મહેનત કરવાની છે. જેમ જેમ તમે આગળ વધશો એમ બાધાઓ એટલે અનેક અડચણો મુશ્કેલી આવવાની જ છે, પણ અંદરથી તમારે સાહસ ઉત્પન્ન કરવાનો છે અને સમસ્યાઓ કાંઈ પણ આવે તેને હરાવવાની છે અને આપણે મહાન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. ત્યારે તમે તમારા જીવનની અંદર સફળ થઈ શકશો અને એથી જરૂરી છે પહેલાં આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા છે ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई. वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? चुनौती એટલે કે લલકારના, એક પડકાર કે કઈ એવી પડકાર છે કે જેનો સામનો આપણે બધા કરવાનો છે. डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है. કે ભારત માટે સૌથી મોટો કોઈ પડકાર હોય ને તો 2020 સુધીમાં શું છે? ભારત દેશ અત્યારે વિકાસશીલ દેશ છે, પરંતુ વિકસિત રાષ્ટ્ર બને અને 1 અબજથી પણ વધારે આપણે આમ કહીએ ને તો ઘણી બધી વસ્તી છે આપણા દેશની અંદર. તો આ બધા જ નાગરિકો છે, દરેક લોકો છે તેના ચહેરા પર મુસ્કાન હોય, આવી તેમની ઈચ્છા છે. પ્રશ્નકર્તા હર્ષ ચાંડક, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई. आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा व्याख्या. डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. કે આપણે આપણા જીવની પણ ચિંતા કર્યા વગર, પરવા એટલે ચિંતા કર્યા વગર બીજા લોકોને સંકટ કે મુશ્કેલીમાંથી બચાવવું એ સાહસ છે. प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन. हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है. ભારતના જે મૂળના લોકો છે, ભારત જેનું મૂળ છે એવા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે ને એ ભારતનો અંગ જ છે. ભલે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા હોય પણ એ ભારતનું એક શરીરનું એક અંગ છે. और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है. सांस्कृतिक अपनी जो संपत्तियों છે, स्थापत्यों છે तेना पर गर्व છે. सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है. તમારા માટે ગર્વની બાબત એ છે કે જ્યારે તમે તમારા અન્ય કોઈ પણ દેશમાં રહેતા હોય છતાં પણ તમે તમારા માતૃભૂમિ પ્રત્યે તમારું ઋણ ચૂકવવા માટે હંમેશા તત્પર હોય અને એના પ્રત્યે તમે લાગણી ધરાવતા હોય તો એ જ મોટું સૌભાગ્ય છે. પ્રશ્નકર્તા છે સत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर. जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने महत्वपूर्ण हैं. हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं. हमारे लिए आपका क्या संदेश है? હવે જુઓ કે બધા લોકો એક જ વિચારતા હોય કે કોઈને વૈજ્ઞાનિક બનવું છે, કોઈને એન્જિનિયર બનવું છે, કોઈને ડૉક્ટર બનવું છે, પણ આપણો દેશ તો 75% લોકો ખેતી સાથે જોડાયેલા લોકો છે. તો શું આ તો દેશ કિસાનનો છે, તો શું કિસાન બનવું જરૂર નથી? અને ખેતી સાથે જોડાય શું મજૂરી પણ એટલી જરૂર છે? તો કોઈ પણ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા એમની પણ છે. તો શું તમારો આ વિશે વિચાર છે? डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है. दस्तकार એટલે શિલ્પકાર, કિસાન ખેડૂત છે, મજદૂર છે, કોઈ પણ કલાકાર છે, કોઈ શિલ્પ કલાકાર છે, બધા જ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે અભિન્ન અંગ છે. કારણ કે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તો ડૉક્ટર, એન્જિનિયરથી નથી થતું, બધાથી થાય છે. राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप की दरकार है. सेवा करवानी છે. आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें.
અને દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાનું જે ક્ષેત્ર છે, કોઈ પણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે તેમાં ખૂબ જ ઉન્નતિ કરે. અને દરેક આપણે આગળ ભણીએ છીએ એ રીતે કે કોઈ પણ દેશનું નિર્માણ છે ને કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા થતું નથી, પણ સહિયારી પ્રયત્નથી જ હંમેશા થતું હોય છે. પ્રશ્ન કરતા रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा. आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? કે તમે એવું વિચારો છો કે 2020 સુધીમાં આપણો દેશ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પરંતુ નિરંતર વધતી જનસંખ્યા એટલે કે વસ્તી વૃદ્ધિ અને બેરોજગારી એટલી છે, તો શું આ શક્ય બનાવશે? कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. ખરેખર વિકાસ થાય ને તો ઓટોમેટિક જનસંખ્યા એ ઘટવાની જ છે, કારણ કે માણસ વિચારશીલ બનશે, વિકસિત બનશે, બુદ્ધિશાળી બનશે, તો ઓટોમેટિક વિચારશે કે વધારે વસ્તી છે એ દેશ માટે અવરોધ ઊભો કરે છે, વસ્તી ઓછી કરવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિ છે એક ઝાડ એક બાળ એ નિયમ પ્રમાણે શું કરશે, અમે બે અમારા બે, હવે વ્યાખ્યા બદલાઈ ચૂકી છે, અમે બે અમારું એક, આ રીતે દરેક વ્યક્તિ વિચારશે. इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. मात्र पुरुष शिक्षण होવું જરૂરી છે, સ્ત્રી શિક્ષણ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સ્ત્રી ભણેલી ગણેલી હશે તો પોતાના પરિવારને સમજશે, સમાજને સમજશે અને દરેક રીતે ઉપયોગી બની રહેશે. इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है. કે સ્ત્રી ભણેલી ગણેલી હોય તો શું કરે, નાનો પરિવાર સુખી પરિવારને વધારે મહત્વ આપે છે. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. 2020 સુધીમાં તો ડોક્ટર કલામનું સ્વપ્ન હતું કે તમામ રોજગારી બધું પૂરું પાડી શકશે. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे અને ગામડાની અંદર પણ ઉદ્યોગ ધંધા વિકસી શકે એવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. જેનાથી આ ક્ષેત્રમાં રોજગારીમાં પ્રચુર એટલે ખૂબ જ પુષ્કળ માત્રામાં અવસર ઊભા થશે. હવે અહીંયા કપાઈ ગયેલું છે, બાકી પ્રશ્ન કરતા જ છે અને કલામ જ છે, એમાં સમજવાનું છે તમારે. प्रश्न करता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल वडोदरा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, 1 अबज थी पण वधारे छे. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं. 54 करोड़ लोग एवा छे जे 25 वर्ष थी नीचेनी उंमરના છે. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति, કારણ કે युवा धन છે એ જ खूब महत्वનું છે. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है. खाका એટલે કે ઢાંચો, માળખું. પ્રાકૃતિક સંસાધન નદી, પર્વતો, પહાડો છે, જંગલો છે, આ બધા જ આપણે ઉપયોગી બની રહે છે. 54 करोड़ युवाओं की विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. અને ખરેખર આ વિકસિત કરવામાં મદદરૂપ બની રહેશે. प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है. कि विद्यार्थी भणवामां होशियार होय तो तेने छात्रवृत्ति એટલે કે શિષ્યવૃત્તિ સ્કોલરશિપ આપવામાં આવે છે. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બેંકમાંથી લોન પણ મળે છે. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है. जो ऊंचो ध्येय सिद्ध करने માટે अनेक प्रकार की बाधा, अड़चन, मुश्किल तो આવવાની જ છે. हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा. पर सखत परिश्रम करी અને उत्कृष्ट कार्यों કરીને તેને આપણે હરાવવાની છે બાધાઓને. विघ्न बाधाओं से व्यक्तियों को पराजित नहीं होना चाहिए. કાંઈ પણ બાધાઓ છે, મુશ્કેલી આવે છે, અડચણ આવે છે, તેનાથી આપણે પરાજિત થવાનું છે નહીં, હાર નથી માનવાની. प्रश्न करता है मिथुन के, द्वितीय वर्ष बी लेवल, AICT अमृतापुरी. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाना. જે રાજનીતિજ્ઞ છે, રાજકીય નીતિ નિયમો છે એમાં કંઈક ફેરફાર કરવા જોઈએ, નીતિ નિયમ બનાવવા જોઈએ. महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालने हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी. ગાંધીજીના ચોક્કસ સિદ્ધાંત હતા સત્ય, અહિંસા, નિસ્વાર્થ. પરિણામે અંગ્રેજોની સામે પણ લડાઈ પણ છોડી હતી, લડાઈ પણ કરી હતી. वर्तमान राजनीतिकों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा. पारदर्शी એટલે કે જેને આર પાર જોઈ શકાય એ રીતે
કઠોર પરિશ્રમથી અને વર્તમાનના જે નેતાઓ છે તેને સહભાગી બનવાનું છે। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। જે ગરીબ રેખા નીચે એટલે કે જે રોટી કપડા મકાન સામાન્ય જરૂરત પર સંતોષી શકતા નથી એવા 26 કરોડ લોકો ભારતની અંદર છે ગરીબ, તેના ઉત્થાન અને વિકાસ માટે પણ કાર્ય કરવાનું છે। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 के लक्ष्य पाने में महिला की क्या भूमिका हो सकती है? और एक संरक्षण माटे विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है कि संरक्षण माटे शुं करवुं जोईए, स्त्रीओने शुं स्थान आपवुं जोईए एना विषे पण विचार करवामां आव्यो छे। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियोक्ता के लिए पुरुषों और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाने वाला। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव न समझવો જોઈએ। અત્યારે તમે જો थल सेना, वायुसेना, जल सेना, कोई पण सेनानी अंदर તમે જો मुख्य पांख तरीके पर स्त्रीओ होय छे। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती है। અને મોટા મોટા સાધનો, સબમરીન, મોટા તમે જો અવકાશ ક્ષેત્રમાં પણ મોટા મોટા કાર્યોમાં પણ સ્ત્રીઓ હવે સહભાગી બનવા લાગી છે। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? अतिवृष्टि એટલે કે જે અયોગ્ય છે એવા ખર્ચામાં શું આપણે ખર્ચો ઓછો ન કરી શકાય? कलाम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादन चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होना चाहिए। જે ઉપયોગી નથી એના ઉપર ક્યારે ખર્ચો કરવો જોઈએ નહીં। અહીંયા જબ્દો કલામ શું કીધું કે જે ખુરશી હતી તું જોઈ શકે છે, હું નથી બેઠો, તે ખુરશી વધારાની છે, તો એનો એવું જે અયોગ્ય છે એવી વસ્તુ ઉપર ક્યારે ખર્ચો કરવો જોઈએ નહીં। અબ્દુલ કલામ વ્યક્તિઓ વિદ્યાર્થી તમને ખબર હશે કે રાષ્ટ્રપતિ ભવનની અંદર પોતે જ્યારે રહેતા ત્યારે બહુ ઓછું લાઇટ બિલ આવતું ને ઓછા રૂમનો ઉપયોગ કરતા। પોતાના પરિવાર જમવા માટે એકવાર આવ્યો હતો ને ત્યારે એનું બિલ પણ પોતે જાતે ચૂકવી દીધું હતું। તો આવા વિચાર તેઓ ધરાવતા હતા। शब्दार्थ જોઈએ। जीवन એટલે કે લાઈવ, जीता जागता प्रसारण, जीवित। मातृभाषा यानी कि पारिवारिक माँ के मिलने वाली भाषा। वैश्विक એટલે विश्व संबंधी, बृहद, बड़ा, महान, भारी। विरासत यानी धरोहर, संपत्ति। दस्तकार यानी कि शिल्पकार। दरकार, जरूरत, कदर। उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ। विघ्न, बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणकारक, बहुत अधिक संख्याओं में। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादन, जो उत्पन्न न करे। अतिवृष्टि એટલે बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक એટલે કે समर या युद्ध में संबंध रखने वाला। खाका, ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख એટલે કે એને આપણે માળખું પણ કહી શકાય। પ્રચુર એટલે પર્યાપ્ત। તો હવે આપણે આના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોને निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। જેટલા ફૂદડીવાળા પ્રશ્ન છે ને એટલા જ કરવાના અને સ્વારા પોથીમાં સોરી તમારે જે CW છે એમાં પણ એટલા જ પ્રશ્નો લખવાના જે ફૂદડીવાળા હોય છે। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है।
सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उसके निपटने के सक्षम न हो तो सेना के जवान उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करते हैं। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना के देशों की रक्षा करती है। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई? कलाम जब 5वीं कक्षा में था तभी एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थी को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गई और वहां उन्होंने विद्यार्थी को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आपकी यादगार घटना बताइए। गर्मी की छुट्टियां थी। मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो। डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर उधर और इधर से उधर चक्कर लगाता था। इसी दिन मुझे तैरना आ गया। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियर की कमी नहीं है। कमी है अच्छे वैज्ञानिकों। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? હવે આપણે બધા મારે लागू पड़े। यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है। जब उसका निर्माण हो रहा तब क्या अवैध नहीं था? विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? बचपन में हम किस भाषा की प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न नंबर 3, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। અબ્દુલ કલામને ખબર નહોતી કે 2020 શું થશે, પણ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કોરોનાની ભયંકર પરિસ્થિતિ છે। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें से छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फराटे से दोपहरिया वाहनों पर आ रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं है। यहाँ 2 होटल है। इसमें समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेड का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। प्रश्नकर्ता छे
चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों, कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। तो आ विडियो अहींया सुधी। हवे फुदेડીवाળા જેટલા પ્રશ્નો તમારા સ્વાધ્યાય છે એ તમારે પાકી બુક એટલે કે ફેર બુકમાં લખી લેવાનું છે। ધન્યવાદ।